ये एनजीएमए ने बहुत ही बड़ा काम किया है मराठी सिनेमा और मराठी आर्टिस्ट के जितने भी यहाँ पे फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। मराठी चित्रपट सृष्टि जो है वो जब प्रफुल्लित हो गई है ऐसा महसूस हुआ। निधि मैडम के बहुत बहुत आभार कि उन्होंने ये उपक्रम करना चाहा और इसका इनॉग्रेशन आज हुआ मेरे और नेहा पेंडसे के दोनों के हाथ से। और कामत फोटो फ्लैश ने बहुत बड़ा योगदान किया है इस पूरे एग्जीबिशन में। उनके साथ और भी लोग हैं जिनकी तरफ से हमें पोस्टर्स मिले हैं या और भी पिक्चर्स मिले हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या में अगर फोटोग्राफ्स मिले हैं तो कामत फोटो फ्लैश जो कंपनी है उनके तरफ से मिले हैं। और मैं बहुत आनंदी महसूस कर रहा हूँ, बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ अपने आप को कि मैं इस भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। छोटा सा हिस्सा, यू कैन सी राइट हियर कि कितनी बड़ी लेगेसी है आपकी। इस फोटो को देख के आपकी कुछ यादें ताज़ा हो गई, इस एग्जीबिशन को देख के आपकी कुछ बहुत सारी यादें। ऐसा लगा कि मैं 63 साल पीछे चला गया। ऐसा लगा कि अभी अभी मैं इंडस्ट्री में आया हूँ। 1962 में मेरा पहला शॉट मैंने दिया था और 63 में पिक्चर रिलीज हुई थी जनवरी में। तो ऐसा लग रहा है कि कल की बात है और आज भी मुझे जैसे मैंने उस वक्त शुरुआत की थी वैसे ही मैं आज भी शुरू कर रहा हूँ और मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। आपकी एनर्जी देख के यही लगता है। Can we tell all the other Marathi actors to also come and visit? मैं बिल्कुल मैं सारे अपने मराठी इंडस्ट्री के जितने भी आर्टिस्ट हैं या टेक्नीशियन हैं सबको मैं कहूँगा कि एक बार ज़रूर यहाँ आकर भेंट दें इस जगह को और देखें कि हमारी अपनी मराठी फिल्म इंडस्ट्री को लोग कितना प्यार करते हैं। Thank you. NGM Mumbai has taken such a beautiful initiative of representing Indian cinema at large. इस बार मराठी सिनेमा इंडस्ट्री को पूरा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ट्रिब्यूट दे रहे हैं, and you are an integral part of it. How do you feel about the same after having seen the exhibition? I mean, yes, it's a matter of pride that NGMA for the first time is having an exhibition which honors Indian cinema, Marathi cinema, and with the glorious journey that both these industries have had. So I'm extremely proud that I am part of both these industries, and I mean, you see beautiful journey, all the people who've been there before you contributed such great legacies, and it's a great education as well. I mean, a lot of movie lovers, cinema lovers could actually come here and just watch the entire journey of different decades. So extremely proud that I'm invited here. My picture is there in the Marathi section, so I'm just very honored. Having seen all the pictures in the Marathi section, did it take you down the memory lane? Did it bring back some memories? Absolutely, because Sachin Pradavkar ji was also a part of that. He was right here with us till some time back, and we share great memories. And in fact, when we were on the stage, we were talking a lot of things about our journey and memories. So yes, of course. I mean, I've been around for close to 3 decades now. I've had my own journey, so it feels very nostalgic and feels very nice. And to all the fellow Mumbaikars, how would you like to urge for them to visit this beautiful exhibition at some point? I think cinema is such a big part of our lives. We love entertainment. We love Bollywood. We love Marathi cinema. This is Maharashtra, so there are a lot of Marathi movie lovers as well here. And I just urge that they all should just come here. I mean, there are great classics from the past which we are not aware of right now. We are hardly catching up with films of our times, and it's just a great way to be introduced to people and legacies from the past, and they should just come and just give them that love and respect. Thank you so much, Master Stroke from NGMA Mumbai. This time the Marathi edition of it. How did this idea come about? कैसे हुआ ये?
हिंदी सिनेमा को डेडिकेटेड हमने लेंस इन लेगेसी बॉलीवुड इन फोकस शो 30 अप्रैल 2026 को ओपन किया था। उसके बाद बहुत सारी जनता ने उसको बहुत सराहा और साथ में ये भी एक सुझाव सबकी तरफ से आया और ख़ास तौर पे मुंबई की महापौर ने हमें ये कहा कि मराठी सिनेमा पर भी शो होना चाहिए। इससे पहले एनजीएमए के इतिहास में कभी भी सिनेमा पर भी शो नहीं हुआ था एनजीएमए मुंबई में। तो ये विचार करना कि मराठी सिनेमा के लिए एक डेडिकेटेड शो हो, इस पर हमने उनकी जो सुझाव था उस पर विचार किया और हमें लगा कि निश्चित तौर पर मराठी सिनेमा के लिए डेडिकेटेड एक शो बनाया जाना चाहिए। और डोम में जो नंदलाल बोस का कलर्स ऑफ स्वदेश शो था उसके रैपअप के बाद हम वहाँ पर मराठी सिनेमा को डेडिकेटेड शो मराठी चित्रपट स्टोरीज एंड स्टारडम लेकर आए हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुंबई के सभी सिने प्रेमी, कला प्रेमी, चित्रपट प्रेमी इस शो को देखेंगे और इसे बहुत एंजॉय करेंगे। और दादा साहेब फाल्के के एरा से लेकर 2026 के एरा तक पूरा आपने जितनी भी चीज़ें हैं, फोटोग्राफ्स हैं या मेमोग्राफी है, वो सब कलेक्ट किया है। सो क्या, अगर आपने नोटिस किया हो, क्या इनका जो प्रेजेंस है ऑनलाइन या फिजिकली हिंदी से या इंग्लिश फिल्मों से कम है, एंड वाज इट अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू गाइस टू मराठी सिनेमा, जैसा कि सचिन पिलगांवकर जी जो कि आज के उद्घाटन कार्यक्रम के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने भी यही कहा कि राजा हरिश्चंद्र जो भारत की पहली मुफ्त फिल्म थी, फर्स्ट फुल मूवी जो बनाई गई थी, वो मराठी फिल्म ही थी। भले ही वो एक साइलेंट मूवी थी लेकिन उसमें सभी काम करने वाले कलाकार, उसके दिग्दर्शक, उसके टेक्नीशियन सब मराठी थे। और मुझे लगता है कि ये बात सही है। महाराष्ट्र से ही फिल्मों का जन्म हुआ है, भारतीय सिनेमा का जन्म हुआ है। दादा साहेब फाल्के, वी शांताराम, इनके योगदान के बिना भारतीय सिनेमा को भी पहचाना जाना बहुत नामुमकिन है। इसलिए ये शो बनाना जरूरी था। मुश्किल हुई, यस, आप सही कह रहे हैं कि जितना आसानी से हमें फोटोग्राफर्स और सिने आर्काइविस्ट जो कि हिंदी सिनेमा में काम करते हैं मिले थे, जब मराठी सिनेमा की बात आई तो उसमें बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर ढूंढना मुश्किल हुआ जो लगातार मराठी सिनेमा को कैप्चर कर रहे हैं, पिछले कई सालों से कैप्चर कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली कामत फोटो फ्लैश के पास ना सिर्फ हिंदी सिनेमा बल्कि मराठी सिनेमा का भी बहुत सारा आर्काइविस्ट कलेक्शन था। SMM मसूजा के पास था, जिन्होंने ये अपना रिच जो ट्रेजर है जो हमारे साथ साझा किया है और जो आम जनता के लिए अब NGM में सामने पेश किया जा रहा है। तो आप मुंबई की जनता को वापस से कैसे आप अर्ज करेंगे कि इस बार मराठी सिनेमा और मराठी इंडस्ट्री के दिग्गजों को मैं मुंबई की जनता को ये कहना चाहूंगी कि मुंबई को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी फॉर फिल्म्स का रिकॉग्निशन दिया है। NGM में ये जो हिंदी सिनेमा और मराठी सिनेमा को सेलिब्रेट कर रहा है वो असलियत में मुंबई की जनता को सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि ये मुंबई की जनता ही है जिसने भारतीय सिनेमा को, मराठी सिनेमा को, गुजराती सिनेमा को, रीजनल सिनेमा को इतना प्यार दिया है। और अब हम पहली बार महाराष्ट्र की माटी का, महाराष्ट्र के मानुस का शो लेकर आए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मुंबई की जनता इसे बहुत सारा प्यार देगी। धन्यवाद। For me, this is a pride moment where NGMA is putting up the show of Maharashtrian tradition of movie making. And it is the first time we are giving credit to the Marathi cinema as well as the stars also. And it's in the history of NGMA Mumbai, we are putting up this show first time. So it's a real great opportunity for all the citizens of Maharashtra to come and enjoy this show. And the show will be on till 31st of July. And we hope more and more people will join this show, and this is an extension of our show, Lens and Legacy Bollywood in Focus. So it's a way where we are representing the tradition of Bollywood cinema starting from Dada Saheb Phalke till now, and like this is the opportunity for the audience of Mumbai and from entire India and the world to view this exhibition, and I hope this will be a wonderful experience for all of them. Thank you. And I hope you keep us bringing such wonderful shows again. Yes, for us it's pleasure to having exhibition of different nature. Thank you for So doing such a wonderful that's- job with the NGM. Yes, thanks.